Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already discussed 12 sign languages and alphabets about the Braille script languages. All alphabets of Braille script language. Now, we will move towards the think and explain. If there are any classmates in your class who can't see, talk or walk, then how would you help him? आपकी कोई क्लास में ऐसा क्लासमेट होगा जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? I will help him in works by bringing water, taking out his books and copies, etc. Since he is unable to see, speak or walk, मैं उसकी कैसे हेल्प करूंगी? By bringing वाटर, पानी लेके आऊंगी, उसकी जो बैग में से बुक्स होगी उसको निकालने में मैं उसकी हेल्प करूंगी, जो भी उसकी बुक्स और कॉपीज होगी. नेक्स्ट, आई विल हेल्प हिम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मैं उसे क्या करूंगी? अपने सपोर्ट के थ्रू उसको यहाँ से वहां ले जाने में उसकी हेल्प करूंगी. नेक्स्ट, आई विल हेल्प द डम एंड डेफ स्टूडेंट टू रिलेट देम टू अदर्स. और मैं उन ऐसे लोगों की हेल्प करूंगी जो डम और डेफ है. Okay, this is the right answer of this question. Now, this is your homework. You have to write this answer in your EVS first notebook. Okay, now again move to the chapter. Next, if disabled children around you don't come for studies, inspire them, bring them along with you for studies. Students, अगर आपके आसपास में ऐसे एनवायरमेंट में लोग हैं जो डिसेबल है, तो आप उनको ये मत बोलो कि मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं पढ़ाना, तुम्हें एटलीस्ट उनकी हेल्प करिए, किसमें? स्टडीज में. नेक्स्ट, पेस्ट अ थिक थ्रेड on a boundaries of 4 states of the map of India. Close your eyes and move your finger along the thread and try to understand these states. Students, आपको क्या करना है? You have to take one India map and you have to paste it in your EVS first notebook. Then you have to put the thread on the boundaries of the India map. Then you have to close your eyes. Then you have to understand what is this. Okay, this is your homework. First and second question is your homework. Next, write about such people around you who have achieved success despite their physical disability. Students, you have to identify ऐसे लोगों के बारे में आपको जानना है जिनकी बहुत सारी डिसेबिलिटीज, प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है. फॉर एग्जाम्पल, हेलेन केलर, लुइस ब्रेले, ये डम थे, डेफ थे, ये ब्लाइंड थे, बट स्टिल इन लोगों ने अपनी लाइफ में काफी सक्सेस अचीव किया है. हेलेन केलर ने क्या किया? अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके देन वो क्या बन गई थी? राइटर बन गई थी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉक टू दीज पीपल अबाउट देयर स्ट्रगल एंड सक्सेस. और जिसके बारे में आप आइडेंटिफाई करते हैं उनसे आप उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर पूछेगा. सो this all question 1, 2, 3, 4 is your homework. You have to find the answers of this question. Next, cerebral palsy. Yes, cerebral palsy. Have you heard this name? This is a type of a disease. ये cerebral palsy जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक डिजीज का नेम है. इसमें क्या होता है? Hands, legs and other organs of the patient are normal, but they can't function properly. जो इनके hands, legs होते हैं ये तो proper होते, मतलब होते हैं, but इनका जो functions होते हैं वो easily नहीं कर पाते जिस people को ये disease होती है. In this disease, patient brain has no control upon his organs. जिसको भी ये बीमारी होती है स्टूडेंट्स, उनका जो भी ब्रेन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है. अगर हमारा ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम कोई भी एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आई रिपीट इट अगेन.
This is the cerebral palsy is a disease. Okay, this type of a disease, hands, legs and all other organs of the patient of cerebral palsy are normal, but they can't function properly. इसमें क्या होगा, वो कोई भी function properly नहीं कर पाएंगे. In this disease, patient brain has no control upon their organs. इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का ब्रेन होता है उसमें उसका कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, he can't pick the book kept in the front of him. जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी, अगर आप उसके सामने एक बुक रख दोगे तो वो उस बुक को उठा भी नहीं पाएगा. क्यों नहीं? क्योंकि उसके ब्रेन ने उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया. उसका जो ब्रेन का फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा है. दिस डिजीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज. अगर आपको इस डिजीज से ओवरकम करना है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे लोगों को, उन लोगों को डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज करनी होगी. दिस एक्सरसाइज स्लोली अनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल दी अदर ऑर्गन्स. इससे क्या होगा, अगर आप एक्सरसाइज वो करेंगे तो इससे जो भी आपकी डिजीज है उससे आप ओवरकम होंगे और आप थोड़ा बहुत जो ब्रेन का फंक्शन है वो होगा स्टार्ट. स्लोली पेशेंट ग्रोस नॉर्मल. और धीरे धीरे क्या होगा, पेशेंट नॉर्मली एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. ट्रू, ही कांट वर्क एट अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस. बट जिस स्पीड से हम वर्क करते हैं वो उस स्पीड से नहीं कर पाएगा, बट स्टिल वो थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा अपनी एक्टिविटीज को, अगर वो डेली बेसिस पे अगर इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो. नेक्स्ट, हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया है स्टूडेंट्स? इंस्पाइट देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज सच पीपल हैव सम टैलेंट्स. उनके बहुत डिसेबिलिटीज है, स्टिल उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स छुपे होते हैं. पीपल हु कांट सी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेले सिस्टम. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. जो लोग देख नहीं सकते हैं बट स्टिल वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेले सिस्टम. डम एंड डेफ पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज. और जो डम डेफ है, जो गूंगे और बहरे हैं, उनकी एजुकेशन कैसे कंप्लीट हो सकती है? बाय द यूजिंग ऑफ साइन लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टूड द अल्फाबेट्स एंड द इंस्ट्रक्शन. इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया कि ब्रेले सिस्टम के बारे में और साइंस लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू ऑल योर एक्सरसाइज इन योर EVS notebook. You have to do this answer in your EVS notebook. If there any classmate in your class who can't see, talk or walk, then how would you help him? तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? आप उसे पानी ला के देंगे, आप उनका टिफिन बॉक्स ओपन करके उनको हेल्प करेंगे खाना खाने में, उनकी बैग्स में से नोटबुक्स निकालने में आप उनकी हेल्प करेंगे. और क्या कर सकते हो आप अगर उनको कहीं पे भी जाना है, वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, with your support you can take with them. I will help the dumb and deaf students to relate them to others. और मैं उनकी हेल्प भी करूंगा. So you have to do this question in your EVS notebook. And then you have to write this paragraph. This is the important paragraph you have to write in your EVS first notebook. Now move to the exercise. Students, dash develop Braille script. किसने डेवलप किया था ब्रेले स्क्रिप्ट? लुइस ब्रेले. दिस डैश इज रेज्ड अल्फाबेट बेस्ड ऑन डॉट्स. वो जो अल्फाबेट बेस्ड थे, कितने डॉट्स पे बेस्ड थे? दैट इज 12 तो थे, बट वो बाद में लुइस ब्रेले ने कितने में कन्वर्ट कर? दैट इज 6. नेक्स्ट, सो यू हैव टू राइट आंसर हियर. नेक्स्ट, अ पॉइंटेड पेन. स्टूडेंट्स, आपने पिक्चर में देखा था एक पॉइंटेड पेन था जिसे जो ब्लाइंड पीपल है वो यूज करते उस पेन से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा अल्फाबेट है. द पॉइंटेड पेन इज यूज फॉर राइटिंग ब्रेले स्क्रिप्ट. दिस इज कॉल्ड स्टाइलस. उस पेन का क्या नाम था स्टूडेंट्स? स्टाइलस. नेक्स्ट, टॉक टू स्पेशली डिसेबल्ड एंड फाइंड आउट. आपको क्या करना है?
एक जो डिसेबल्ड पर्सन है उससे बात करनी है एंड फाइंड आउट दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग विच टाइप ऑफ टास्क, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है वो क्या वर्क करने में कैपेबल है. सो यू हैव टू राइट हेयर कैपेबिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. ओके, कि वो क्या क्या वर्क कर सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग. सो टॉक टू स्पेशली डिसेबल, आपको क्या करना है, डिसेबल पर्सन से बात करनी है एंड फाइंड आउट दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग विच टाइप ऑफ टास्क, और वो कौन सा काम करने में इजी है उनके लिए, कौन सा टास्क को वो कंप्लीट कर सकते हैं, आपको ये जानना है. देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज योर होमवर्क एंड थर्ड वन इज योर होमवर्क. ओके, नेक्स्ट, which is the native country of Louis Braille? The native country of Louis Braille is France. I write here answer of fourth. The native country of Louis Braille. स्टूडेंट्स, लुइस ब्रेले किसी का नेम है, सो यू हैव टू राइट दिस नेम इन कैपिटल लेटर्स. फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल इफ यू राइट समवन नेम. ओके, लुइस ब्रेले लिव इन फ्रांस. अगेन, फ्रांस क्या है, एक कंट्री है, सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ फ्रांस इन कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टाइलस? स्टूडेंट, स्टाइलस क्या था? अ पॉइंटेड पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग ब्रेले स्क्रिप्ट. दिस इज नोन एज स्टाइलस. सो answer number 5th, the pointed pen is used for writing Braille script. This is known as, स्टूडेंट्स में ये आंसर यहां कंटिन्यू करी हूं, यू कैन सी दिस एरो. दिस इज नोन एज, वेट अ मिनट, स्टूडेंट्स में इस आंसर को यहां का लिख रही हूं, for used for writing Braille script. This is known as stylus. STYLUS. Students, what is the native country of Louis Braille? तो इसका फोर्थ का आंसर है द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेले लिव इन फ्रांस. द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेले इज फ्रांस. आप ये भी लिख सकते हो, इज फ्रांस. Is France. The native country of Louis Braille is France. Move to the next question. What is stylus? The pointed pen is used for writing Braille script. Then this is known as stylus. क्या है?
A pointed pen is used for writing Braille script. This is known as stylus. मैंने यहाँ पे arrow किया है, you can see in this board. So first is your homework, and third is your homework you have to do yourself. A pointed pen is used for writing Braille script. This is called stylus. Okay, that's all for today. You have to do all this work in your EVS first notebook. That's all for today. Thank you, class.